how you will rate this kind of different eight. I think total 8 questions are there, right? Yes, moderate kind of difficulty is there. Okay, good. So okay, so I know that this topic or this disaster management and internal security topic have very limited kind of resources which is available in the market. Okay, but most of the answers or whatever the references you are going to refer for this particular topic is mostly the online material. Okay, so please try to get more thing from today's session. Okay, आज का जो session होगा, so ऐसे आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये देखना है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको कैसे पॉइंट्स कलेक्ट करना है, लाइक व्हाट पॉइंट्स यू हैव टू कलेक्ट ऑनलाइन. ओके, सो लाइक पर्टिकुलर क्या सर्च करना चाहिए एंड लाइक आंसर्स हमारा कैसे स्पेसिफाइड हो सकता है. ओके, सो आज हम उस पर ज्यादातर डिस्कस करेंगे. एंड ओके, सो आई थिंक देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस, राइट? राइट, ओके. सो मोस्टली the major questions was on the internal security topic, right? So internal security पे बहुत सारे questions थे, and some 2 to 3 questions were on disaster management. Okay, so उसी के regarding आज हम discussion करेंगे. And please tell me one thing. So do you have a description or a detailed explanation copy for the same answer writing? Yes. Do you have the copies of same questions, like a description copy means analysis, what will be the analysis? So आपके पास सबके पास copies है वो? Yes or no? Okay, you don't have. Okay, no issues, no issues. Okay, so I will provide it right after the lecture. Okay, so fine. So now let us discuss about this topic, and this topic has the immense importance in GS3. Okay, so at least we can expect 60 to 70 marks, okay, from this segment. And if you include some like disaster management related environment topic, environment or like particular. So because this year question paper, so there are multiple questions in GS1. Okay, in GS1 that is related to flood and urban flood, and some dot related questions, so which is related to the disaster management also. Okay, so you must have to know the disaster management related to that part, so that you can put in the GS1 part also. Okay, मतलब आपको थोड़ा सा एटलीस्ट उसका नॉलेज तो होना चाहिए, so that आप GS1 में भी लिख सकते हो इसके बारे में. So ऐसे अगर indisciplinary connections among GS1 and GS3 अगर हम ये include कर देते, so it will have more than 100 or maybe 120 marks तक इसका weightage possible हो सकता है. So देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज आजकल आया, एंड देयर आर सम लिमिटेशंस, लाइक वी हैव टू सेट 8 क्वेश्चंस. सो देयर इज समथिंग लिमिटेशन होते हैं कि हम हर टॉपिक को टच नहीं कर पाते, बट यू शुड नो द कोर एरियाज फॉर द सेम डिजास्टर मैनेजमेंट. सो लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है कि अर्थक्वेक, सुनामी, वल्केनिज्म, सो दीज आर द जियोलॉजिकल काइंड ऑफ डिजास्टर. ओके, एंड इफ साइक्लोन इज देयर, सो मेटेरोलॉजिकल डिजास्टर, ड्रॉट कंडीशंस आर देयर और फ्लड कंडीशंस आर देयर, even cloudburst conditions, like ऐसे कुछ conditions हो गए, तो that will be meteorological kind of disaster. Okay, and after that, so और एक factor हम यहाँ पे ले सकते हैं, so that is very famous nowadays, and जो कि COVID-19 related भी आपको GS1 में कुछ questions थे. Okay, so if you see the COVID-19, so it is nothing but the biological disaster. Okay, so ये biological disaster related same questions यहाँ पे possible हो सकते हैं. So इवन साइंस एंड टेक में भी कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो द थिंग इज दैट, सो इसका सिर्फ हमें GS3 के एंगल से विचारने, मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं, सो हम सिर्फ GS3 का जो एंगल है, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं करना है. सो यू हैव टू इंटर रिलेट इट इन सेम GS1. ओके, सम पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ GS3 एक्सेप्ट DMIS, एंड आफ्टर दैट ऐसे में भी हम इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं. सो आज ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि जो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दैट इज द ब्रिंग आउट द प्रेजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी. इफ आपके क्वेश्चंस कुछ आगे पीछे हो गए तो मतलब आप बस उसको सीक्वेंसिंग वैसे बाद में कर देना. सो फ्रॉम माय एक्सप्लेनेशन साइड, सो इट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो आपके टेस्ट के पेपर में भी शायद यही फर्स्ट है. हाँ, चलो यही फर्स्ट है.
थोड़ा आगे शायद कुछ क्वेश्चंस चेंजेस हो सकते हैं, राइट? So now let's start the discussion. So first question is about the bring out the presence of institutional structure of cyber security in India. Okay, so you have to make a different division because it's a very short question. It's like a 10-mark question. But some questions, if you see the question number 4, question number 6, and question number 7. Okay, so these are the lengthy questions. Okay, so in this particular kind of जो questions होते हैं तो उसको हमें segmentation करना चाहिए, like उसको divide करना है हमें 2-3 parts में. So we have to touch every area because sometimes what happen whenever we start to write the answer, so after some time, like after you are writing one page and after that जो हम back page पे निकल जाते हैं तो हमारे mind में क्या है कि एक particular topic ही होता है और उसको हम extend करते जाते हैं, ठीक है? So you have to remember again and again that you have to connect with the every part of the question. So initially आपको एक इसके segment करने हैं आपको, right? Like bring out the presence of institutional structure. So first of all, institutional जो structures हो गए, so that you have to define. And second, cyber security in India. So first of all, introduction will be start with the cyber security. Okay, मतलब यहाँ पे एक second part है. ये जो cyber security, even if it is the second part, but you have to mention first, introduce with the cyber security, and the second part will be for the institutional structure, different structure. Okay, and apart from this, there should be the current affairs which is not mentioned in this part, but still some current example. Okay, which India have the threat from this cyber security. Okay, so उसके related अगर कुछ current structures हो गए, different conventions which is not mentioned over here, so you can mention some conventions like this. Okay, so यहाँ पे हमें क्या करना है, दो part तो question में ही दिया, and third part which is the hidden part, but still you have to mention, so that is the current affairs related part. Okay, so you must have to mention the same. So let's start. So first, we have to give a proper introduction to this. Okay, so like a global risk report by World Economic Forum. So whenever you write like according to particular report, according to particular organization, so it will give a good impression. Okay, so if there is any definition for that, so आप definition भी कोई UN के according अगर कुछ definition होगी या नीति आयोग, मतलब when there is a part of flood, ओके, या डॉट्स के रिलेटेड होगा, सो नीति आयोग वहां पे थोड़ा सा हम उसके अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस हो गए, सो वो आप दे सकते हैं. सो ट्राई टू गिव सम रिपोर्ट और अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग, मतलब ऐसे कुछ डेफिनेशन में आप इनिशियल पार्ट में मेंशन कर सकते हैं. सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बाय WEF हाइलाइट्स इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स. ऑलमोस्ट वन साइबर अटैक क्राइम, ओके, सो साइबर क्राइम एवरी 10 मिनट इंडिया में होता है. सो इट विल बी रिलेटेड टू सम लाइक डिफेंस रिलेटेड होगा या फिर मोस्टली मतलब इंडिया के इनके अकॉर्डिंग ही कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो. सो बैंकिंग सेक्टर इज मोस्टली अफेक्टेड विद दिस पार्ट. ओके, सो बैंकिंग सेक्टर, प्लीज नोट दिस पॉइंट. सो बैंकिंग सेक्टर ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इंडिया में. बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमें थोड़ा सा और भी यहाँ पे चेकआउट करने के अदर लाइक डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा या डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड अगर कुछ डिफरेंट ऑफिसेस हो गए तो वो भी इसके अंडर आ सकते हैं. बट यू कैन concentrate on the highlighted point. Okay, so that is the banking, like the structures, etc. Until a date, India lacks in robust institutional mechanism, definitely to track on and overcome the cyber threats. So on the other hand, India doesn't have any comprehensive law on the data security and cyber security. So there is, I know that there is a IT Act, but still a comprehensive जो हम इससे tackle कर सकते हैं completely related to the data security. So I'm talking about the data security. So there is no exactly proper act in India, so we have to focus on that also. Okay, so after that you can go with the in the body part with the different institutional structure in India. So that is, for example, National Critical Information and Protection Center. Okay, so their vision is to facilitate safe, secure and resilient information infrastructure for critical sectors of the nation, and it aims to create a resilient, robust framework for protection of CII by building collaboration framework and among the various stakeholders and support stronger communication. So there is some different structure. Okay, so cyber security hierarchy in India, so you can overlook fast. Okay, so itna to hum likh nahi sakte exam mein, but at least you should know about it. Okay, so Ministry of, for example, यहाँ पे देखा जाए मतलब एक कॉमन IT एंड टेक्नोलॉजी अगर देखते हो, so Department of Information Technology, that DIT, or Department of like Telecom etc. Indian Computer Team एक अच्छा एक प्रोग्राम है, so we आप मेंशन कर सकते हो. We cannot write all of this, but at least some point from this हम लिख सकते हैं. Okay, so
डिफरेंट देखो पीएम ऑफिस कैबिनेट इसमें अगर पार्ट्स में देखते हैं सो देयर इज लाइक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ठीक है, विच मेक्स डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लाइक दिस एंड देन एनटीआरओ इज देयर. सो ये पॉइंट्स के थ्रू हम गो थ्रू कर सकते हैं, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सो इसमें हम एक इन शॉर्ट जितने आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो इन शॉर्ट उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ओके, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर लाइक टू एक्ट अ नोडल इन द फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम. ओके, तो ये हम एक देख सकते हैं कि नोडल पॉइंट इन द फाइट अगेंस्ट द साइबर क्राइम, सो दैट इज द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर. यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस. और फिर इसके बारे में थोड़ा सा आपने लिख लिया. ओके, ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको. ओके, देन सर्टेन प्रोग्राम, सो व्हिच इज लाइक यस दैट इज द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. जैसे एनडीआरएफ होता है, राइट, कि लाइक व्हेनेवर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिजास्टर, लाइक पर्टिकुलर कोई डिजास्टर हिट होता है, सो देयर इज द एनडीआरएफ टीम व्हिच विल रेस्क्यू दैट. सो यहाँ पे भी वैसे रिस्पांस टीम कौन सी होती है? सो सर्टिन होती है. So collection and analysis, dissemination of information on cyber incidents, okay, and forecast alert and cyber security incidents हो गए, या emergency measures of for handling cyber security incidents हो गए, तो उसके लिए ये एक majorly work करती है. So coordination for incident response activities etc. ठीक है, तो certain you should have mentioned the certain. ओके, यहाँ पे हमारा आज पर्पस ये नहीं, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब आप उतना अगर मेंस के आंसर्स अगर रखते हो तो यू शुड हैव गो थ्रू दैट, बट व्हाट शुड बी द मेंशन, ये आज सेशन हम उतना ही इंपॉर्टेंसली फोकस करेंगे कि व्हाट पॉइंट शुड बी मेंशन इन योर आंसर. जब हम कभी रिव्यू करते कोई किसी का आंसर, सो मोस्टली क्या होता है कि देखो आपके जो वर्डिंग्स होते हैं या आपका जो आंसर राइटिंग का पैटर्न होता है, सो वो तो सिमिलर ही रहेगा, थोड़े से उसमें चेंजेस हो गए, बट पॉइंट्स क्या मेंशन कर सकते हैं, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो सर्टेन यू कैन मेंशन इट. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट आपके आंसर में मैंडेटरी होगा. अनदर इज दैट लाइक साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये भी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, लाइक इट इज अ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. ओके, सो गवर्नमेंट एक्ट एंड प्रोविजन इनिशिएटिव्स हो गया, आईटी एक्ट है 2000, अमेंडमेंट इन 2009. ओके, सो लाइक सेक्शन 43 डेटा प्रोटेक्शन, तो वो भी हमारे क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेटेड टू द डेटा प्रोटेक्शन. और इवन सेक्शन 46, सो हैकिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी. ओके, सेक्शन 70 फोकस ऑन सिक्योरिटी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. तो ऐसे आप एटलीस्ट एक से दो सेक्शंस आपको याद रहने चाहिए, because there is only one act related to this. Okay, so that is the IT Act. So you can mention at least 1 to 2 sections from important sections from this related to data protection. Okay, एंड साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ठीक है, ये भी एक आप मेंशन कर सकते हो. सो फाइनली द वे फॉरवर्ड इज दैट. ओके, मतलब हमें क्या है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे इन शॉर्ट मेंशन करना है. ओके, बिकॉज द क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट, दैट इज लाइक 10 मार्क क्वेश्चन, सो वी कैन नॉट गो इन द डिटेल्स एवरी डिटेल. सो इन द फर्स्ट फेज, ओके जस्ट अ सेकंड, सो इन द फर्स्ट फेज यू मस्ट हैव टू यूज सम लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या थ्रेट है, इंट्रोडक्शन में आपको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे किया है. सो लाइक WEF अकॉर्डिंग क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, सो डायरेक्टली उस पर फोकस किया है. बट यू कैन मेंशन डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी related issues in India, or like which sector is more affected by this cyber attacks in India. Okay, so what is exactly cyber attacks? So you can mention it like this. Okay, so यहाँ पे आप mention कर सकते हैं, and after that you can give this point. World, sorry, global risk report के according exactly क्या situations है. Okay, then next हमने institutional structures यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, राइट. सो आफ्टर दैट हमने कुछ एक दो पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए कि जो इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंट ज्यादा है उनके लिए, ठीक है, जैसे कि नेशनल साइबर कोड सेंटर एक्सेट्रा, या फिर नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर. ओके, सर्टीन या साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है. सो ये मेंशन कर लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट शुड बी मेंशन इन योर आंसर. तो आज ये चेक करो आप, आपने जो भी आंसर्स लिखे हैं तो यू मस्ट हैव टू चेक कि ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ तो दैट शुड बी मेंशन इन योर आंसर. ठीक है, तो वो पॉइंट जो भी नहीं होंगे तो आपको ऐड करना है वो. Apart from this, there is some committees like way forward you can give in this way. So BN Sri Krishna committee recommended to set up a data protection authority. Okay, data protection authority, and it should be created and implemented in spirit and content also. ठीक है, तो उसके रिलेटेड अभी आपके पास ये कमिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. इफ यू डोंट हैव मोर इंफॉर्मेशन और यू आर नॉट able to recollect in the exam, so at least you should mention like name of the committee which is related to the data protection. So at least in short तो भी इसको मेंशन होना जरूरी होगा. ओके, एंड देन साइबर डिटरेंस एंड सिक्योरिटी ऑडिट एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसमें मेंशन किए थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सो यू मस्ट हैव मेंशन सम इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि मैंने आपको बहुत ही पहले मतलब आंसर जब फ्रेम किया था, मतलब जस्ट आप थिंक कर रहे थे कि जब क्वेश्चन जब पढ़ा आपने तब आपने जो सेगमेंट्स किए थे,
तो अपने देखो थर्ड स्टेटमेंट वे फॉरवर्ड में हम मोस्टली थर्ड स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, मतलब थर्ड रिक्वायरमेंट पे आ रहे हैं. सो दैट इज द सम करंट अफेयर्स अपडेट. Okay, so that is the some different committees established for the same, and some international convention, that is the Budapest Convention on cyber security. So cyber security sign qua non means what exactly? अगर possible होगा तो कुछ conclusion में quotes जानी चाहिए, अगर जहाँ पे possible है. So means cyber security is sign qua non means what? It is necessary in this present time. Okay, in present world deluge information, मतलब इतना ज्यादा भी everything is now going to be digital. India is now digital India, हम जिसको बोलते हैं कि India is now becoming a digital India like this. So there must be a we can say there is the necessity of the cyber security in the present period. So ऐसे आप कुछ quoting यहाँ पे कर सकते हो. Apart from this, what is exactly the Budapest Convention? Can you please tell me that? And India is signatory to this Budapest Convention or not? Yes or no? First, can anyone please answer about this? Yes. India is not signatory. Great. Okay, so वही तो हमें लिखना है, right? So that is India is not signatory, but India has to become a part of this because we are becoming the part of digital India. So just 1 second, आपको 2002 में मतलब 2001 or 2 exactly, not I'm not recollecting the year, but just wait. So now you can see. So this is the Budapest Convention. You can see about this. Okay, so that is the Convention on Cybercrime, Budapest Convention on Cybercrime. Okay, so इसके बारे में थोड़ी सी normal information होनी चाहिए. So this is the first international treaty seeking to address internet and computer science by harmonizing the national laws different. Okay, and after that you can write about like exactly मतलब कौन से countries इसके part है, and India is not the part. मतलब hardly एक दो countries के आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे. So these are the main countries. और मोस्टली यूरोपियन इसमें एसोसिएशन होगा. एंड इंडिया अगर देखा जाए सो दैट इज स्टिल नॉट कनेक्टेड विद दिस पार्ट, बिकॉज इंडिया का ऐसे बोलना है कि हम इसके जो ड्राफ्टिंग थे तो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे. सो नाउ वी आर नॉट बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस, बट होना तो चाहिए बिकॉज ब्राजील एंड इंडिया लाइक जो कंट्रीज है तो वो भी मोस्टली अफेक्टेड है साइबर अटैक्स से. सो इंडिया शुड हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस. सो जनरली देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 2001 के अकॉर्डिंग आसपास कुछ आया था एंड केम इनटू फोर्स इन 2004. सो टेंटेटिव जितने डेटाज है तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप बाद में, मतलब थोड़ा सा गूगल कर देना इसको. लाइक देखो द सिंस द इट एंटर्ड इनटू फोर्स इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड इंडिया हैव डिक्लाइंड टू अडॉप्ट द कन्वेंशन ऑन द ग्राउंड्स दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट्स ड्राफ्टिंग. सो इसलिए इसको हम थोड़ा ये कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं. एंड रशिया इवन अपोजिंग द कन्वेंशंस स्टार्टिंग द एडॉप्शन वुड वायलेट द रशियन सॉवरेनिटी. Okay, and has almost refused it. Okay, so since 18, so India has been reconsidering its stand on the convention after a surge in cybercrime through the concern about the sharing data with foreign agencies. So that is the issue. ठीक है, सो इंडिया मतलब कर रहा है यहाँ पे ट्राई कि हमें इसके पार्ट होना चाहिए या हो सकते हैं हम कल जाके. सो इवन देखो यहाँ पे इनफैक्ट like India too was considering its position on becoming a member of the Budapest Convention because of the surge in cybercrime and especially after a push for digital India. ठीक है, तो अभी ये कंसर्न में अगर हम देखते हैं सो इंडिया को डेफिनेटली इसका पार्ट होना जरूरी होगा. ओके, सो दैट हमें कुछ एक डिफरेंट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबली प्रोवाइड हो सकता है. अंडरस्टूड. सो इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लाइक 10 मार्क क्वेश्चन है, हम ज्यादा भी एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको. ठीक है, सो बट द इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक बुडापेस्ट कन्वेंशन, then the necessity of this part, then after that some committee you should have mentioned. Okay, then after that IT Act some provisions if possible. Okay, then some national cyber coordination center starting ऐसे कुछ हो सकता है, वो अगर possible है तो वो mention कर सकते हो. And after that like a proper introduction इसका एक होना चाहिए जिसमें at least some definition related to the cyber crime, or you have to elaborate the cyber related terrorism and some if report is possible any, so you can go with this. Okay, so that's are all the points. Any question after this? Yes, any question? So कुछ यहाँ पे हम अगर points हो गए मेरे पास तो हम देखते हैं. Yeah, so that is my some disaster management notes. Just a second. So उतने ऐड नहीं हुए यहाँ पे तो हम देखते हैं. If possible, we can see some extra points. Just a minute, just a minute.
ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर आपको डेफिनेशंस एक्सेट्रा चाहिए तो यू कैन गो विद दिस. ओके, सो हाँ सर, यूज ऑफ विकिपीडिया इज ओके, आई मीन ऑथेंटिक. यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट गौरी, इट इज गुड. ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मोस्टली गूगल, हम गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, विकिपीडिया इज ऑलवेज देयर. ठीक है, सो इट इज फाइन, देयर इज नो इशू. ओके, बट वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, नॉट मोर देन दैट. ओके, यस गौरी, अंडरस्टूड. ठीक है, सो यस, ओके, सो साइबर अटैक अगर देखा जाए तो उसके थोड़े से आप डेफिनेशन अगर आपको कुछ चाहिए, है ना, तो ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट हो सकते हो यहाँ से कि मतलब लाइक डिफरेंट, यहाँ पे साइबर स्पेस इज द कनेक्टेड इंटरनल इकोसिस्टम है. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स थोड़े से जितना पॉसिबल है उतना ट्राई करो. मोटिव बिहाइंड साइबर अटैक्स क्या होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन कल जाके साइबर अटैक पे आता है, बिकॉज देखो अभी जो हमने देखा, सो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म. ठीक है, तो इसलिए हमने वहां तक ही कन्फाइंड रखा था क्वेश्चन या आंसर को, एंटायर आंसर को, राइट. बट इफ द, जस्ट अ सेकंड, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Okay, okay, fine. So if the question is like completely on the cyber attack like point, okay, so you have to mention the motive behind this. So there is a difference, like cyber attack and cyber terrorism is difference. What is the meaning of terrorism? Okay, terrorism means क्या है कि एक just कोई particular country होगी या फिर कोई जो भी हमारे enemies होंगे, या मतलब for that particular like country जो भी मतलब इसको अटैक करने वाले, ठीक है. सो टेररिज्म मीन्स क्या है कि थ्रेट, जो थ्रेट है वो स्प्रेड होना चाहिए उनके माइंड में. ठीक है, सो they have the motive to spread the threat. Okay, so that will be known as the cyber terrorism. But usually what is the cyber attack? To seek commercial gain and hacking banks हो गए या financial institutions है, to attack critical assets of the nation. So these are the part of this. Okay, so to penetrate into the both corporate and military data serves to obtain plans and intelligence different, to hack sites to virally communicate a message for some specific campaign related to the politics and society. Okay, so these are the motives. Motive must be there. ओके, तो मोटिव एक अलग होता है, तो वो मोटिव आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होना जरूरी है. ठीक है, सो ये कुछ इसके मोटिव्स होते हैं. अगर आपको नेसेसरी होगा, सिंपल क्वेश्चन ऑन साइबर अटैक ज्यादा होगा, सो यू कैन यूज दिस पॉइंट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. ओके, सो इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी. सो व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस? ओके, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा हम साइड में जा रहे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोर साइबर अटैक. Okay, so what are the exactly motives? Then second, what are the causes? Because there is everything is now like online, different clouds हो रहे हैं या फिर different mobile technologies and internet, इसका use अभी differently क्या हो रहा है, everything के लिए अभी use हो रहा है. So like cyber space has inherent vulnerability that cannot be removed. Okay, and the internet technologies makes it relatively easy to misdirect attribution to the other parties. Okay, and it's generally seen that attack technology outspace defense technology, and lack of awareness of cyber security definitely will affect in next या अपकमिंग फ्यूचर में अगर देखा जाए, अगर हम जितना डिफेंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उतना डेफिनेटली हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में. ठीक है, सो जो भी स्पेशलिस्ट है तो उनका प्रॉपरली यहाँ पे एनरोलमेंट होना चाहिए, या फिर जो भी डिफरेंट स्पेशलिस्ट है, सो तो उनका रिक्रूटमेंट होना बहुत जरूरी होगा. So that will be the points. So need for the cyber security. So for individual, yes, it is necessary, because ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें डिफरेंट लाइक डेटाज आर लीकिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर जो डिफेंस सेक्टर है या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, तो वही नहीं करना है, लाइक फॉर नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट बट ऑल्सो फॉर द इंडिविजुअल, बिकॉज हमारी प्राइवेसी होती है, फोटोज, वीडियोज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो ये शेयर हो सकती है डेफिनेटली. एंड ये भी हम कंटिन्यूसली न्यूज में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इलिसिट यूज अभी रिसेंट टाइम में दिखे फॉर द इंडिविजुअल लेवल भी अगर देखा जाए. सो फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली बहुत सारा डेटा इनका होता है. सो डेफिनेटली अगर ये लॉस हो जाता है, सो इट विल बी इकोनॉमिक लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, एंड गवर्नमेंट अगर देखा जाए, सो दैट इज डेफिनेटली एक इशू यहाँ पे क्रिएट होगा. सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑलरेडी हमने देखा है. सो ITU and Budapest Convention. Okay, so that is very important. India is not a signatory in the convention, but it can be. Okay, so मतलब हो सकता है इंडिया आने वाले टाइम में. Okay, so laws related to that, so that is the ITF you should have to mention. So national cyber policy भी एक 13 की, तो वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा एक बार फास्ट मेंशन कर लेना यहाँ पे. 13 हमने डिस्कस किया था. ओके, सो जितने भी पॉइंट्स हैं तो थोड़े से नोट करके रखो. साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऐसे भी कुछ आप डिटेल्स दे सकते हो.
India's edition on the highest number of cyber attacks threats have been detected in India. Okay, and यही इसी के according, so banking and telecom are the most attacked sector, okay, in India. But manufacturing, healthcare, and retail have also faced significant number of cyber attacks in India. Okay, so anyways, so it is all about this. Okay, so इसी के लिए हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसके लिए अवेयर होना या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम. ओके, बाकी साइबर थ्रेट इवोल्यूशन तो होने ही वाला है. ओके, बराबर है. तो यहाँ पे पहले वायरसेस थे, हैकिंग वेबसाइट, देन डॉस अटैक एक्सेट्रा, बट इसके साइंस एंड टेक के पार्ट में फिर वो निकल जाएगा. सो डिफरेंट करंट एग्जांपल्स यू शुड नो अबाउट, लाइक पेट्या रैंसमवेयर अटैक, डेटा थेफ्ट ऑन जोमेटो, WannaCry जो बहुत ही फेमस हुआ था. ठीक है, सो वो एक इंडिया पे अटैक हुआ था. सो जितने भी पॉसिबल, अगर रिसेंट 19 और 20 के आपके पास एग्जांपल हो गए, सो प्लीज ट्राई टू मेंशन सम एग्जांपल्स. ओके, एंड हाउ इंडिया डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके, सो एनीवेज, तो यहाँ तक क्लियर है सबको. बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, बट गो सिलेक्टिवली. ओके, जैसे एज पर द नीड होगी तो वैसे आप उसको देख सकते हो. ओके, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पार्ट? It's fast. Is any question in first part? Question है किसी का? Yes, understood everyone? Every point? So what is necessary? बस उतना याद रखो कि what is exactly the necessary things. Yes, any question? Kindly reply in the chat box. Fast, everyone, fast. Okay, Saurabh, Vedanti. Okay, no question. ठीक है, fine. Okay, so next question. Okay, so next question is, so that is the mention the role played by FATF. So mention the role played by FATF in countering the transnational terrorism. Again, thoda 10 mark है, तो short question है, but still we will go in the details. Okay, so transnational terrorism के लिए FATF का क्या role है, मतलब exactly. So financial action task force, okay, जो कि G7 ने establish किया था इसको. ठीक है, तो ये आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए. ईयर ठीक है, याद आता है तो इट्स फाइन, नहीं आता है तो यू कैन स्किप इट, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय G7 एंड इट्स मोस्टली फॉर द काउंटरिंग इलीगल मींस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, अभी रिसेंटली अभी देखो इंडिया में भी इसके बारे में जस्ट रिसेंट कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड मींस इवन अभी तक इसमें कैसा था कि मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड डिफरेंट टेररिज्म को फंडिंग होगा या फिर अदर लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, ये सब इसमें पार्ट्स आते थे लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के बेस में. बट रिसेंटली ऐसे भी यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट निकाला था, अभी कुछ एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स में मैंने एक्चुअली वो कवर किया था. सो दैट इज लाइक जो इलीगल ट्रेडिंग होता है, ओके, सो विच इज कंट्रोल्ड बाय द साइट्स. ओके, सो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ endangered species, illegal trading, nothing but illegal trading जो होता है, तो वो भी यहाँ पे क्या है कि एक मनी रेस कर देता है, एक वो भी एक पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आ सकता है. ओके, सो उन्होंने फिर इस बार वो रिसेंटली रिपोर्ट निकाला था, उसमें इंडिया को हाईलाइट किया कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा ऐसे कुछ इलीगल ट्रेडिंग होता है, उससे एक मनी, बहुत ब्लैक मनी जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो या थ्रू द मनी लॉन्ड्रिंग ये सब ऐसे जनरेट हो रहा है. ठीक है, so anyways, so FATF, it is an intergovernmental body which was established to set standard and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threat to the integrity or international financial system. Okay, and it is a policy making body which works to generate necessary political will to bring about national legislation and regulatory reforms in this area. ओके, सो ये थोड़ा सा आपका इसमें FATF का इंट्रोडक्शन आना चाहिए, व्हाट इज देयर वर्क एग्जैक्टली, सो उनका वर्क मेंशन होना चाहिए. आफ्टर दैट देयर रोल विल यू कैन मेंशन इन द बॉडी पार्ट. सो इट सेट्स स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग. एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड इश्यूज टैकल करने के लिए, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग होता है या फाइनेंस ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, डिफरेंट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा. ठीक है, तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है, उसके लिए इनके डिफरेंट रूल्स हैं. So they usually declares a grey list and blacklist. So grey list means like it is the introductory phase. So जो country यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि mostly support कर रहे हैं terrorism को, like Pakistan. So countries that are considering safe haven for supporting terror funding.
for money laundering. Okay, and money laundering are put in the FATF gray list. Okay, so the inclusion serve as a warning to the, okay, मतलब introductory phase है, यहाँ पे warning दिया जा रहा है कि आप ये सब बंद कर दो, otherwise you will move to the blacklist, and then all financings related to development और जो भी होगे तो वो आपको financing बंद किए जाएंगे. ठीक है, उनको blacklist में मतलब कोई country यहाँ पे like investment etc नहीं करेगी, और that is will be not a favored nation. Okay, so the inclusion serve as a warning to the country that it may enter the blacklist, and the blacklist countries known as the non-cooperative countries or for the terrorism, okay, are put in the blacklist, and these countries support terror funding, money laundering activities, and the FATF revise the blacklist regularly, adding or deleting, मतलब ऐड करते डिलीट करते ऐसे चलते रहता है, मतलब कभी कभी ग्रे लिस्ट में. तो रिसेंटली देखो पाकिस्तान को भी इन्होंने ऐड किया था इन द ग्रे लिस्ट. ओके, एंड उसको कंटिन्यू किया बिकॉज स्टिल देयर आर सम प्रूफ्स की वो स्टिल सपोर्ट करते हैं टेरर, या टेरर को फंडिंग यहाँ से होता है. सो दैट इज द इशू. ठीक है, सो ग्रे लिस्ट देख लेना, ब्लैक लिस्ट एक बार. सो ये आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए, दैट इज FATF ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. ओके, एंड जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, लाइक सम कंट्री लाइक पाकिस्तान व्हिच कंटिन्यूज टू रिमेन द पार्ट ऑफ ग्रे लिस्ट ऑफ FATF. ओके, सो डेडलाइन टिल द जून उनको दिया कि जून तक चांस दिया कि आप देख लो यहाँ पे कुछ तो मतलब डिफरेंट इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो दैट विल बी बेटर. अदरवाइज अगेन यू विल कंटिन्यू एज ग्रे लिस्ट, और यू कैन you will be listed as a blacklisting. Okay, so ensure compliance with the 27 point action plan against the terror उनको provide किया, and money laundering etc. So और face blacklisting. So अभी ये इनको warning दिया already, मतलब ये warning phase में. So now Pakistan will be moved after 2020, मतलब already मतलब अभी 2021 में. ठीक है, so blacklisting हो सकता है. Okay, so इनका possibly blacklisting possible हो सकता है अगर इन्होंने stop नहीं किया तो. ओके, सो ये मेंशन करो विद द करंट एग्जांपल. ओके, तो यहाँ पे विद द एग्जांपल आपको ये मेंशन करना है कि क्या होता है ग्रे लिस्टिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग, सो दैट वी कैन टच टू दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. मेंशन द रोल, ये रोल है फिर इनका, तो वार्निंग प्रोवाइड करना, अलर्ट करना. ओके, सो लाइक दिस. एंड फिर ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म कैसे आप रिड्यूस कर रहे हो आगे हम देख सकते हैं. सो एनीवेज, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, एनहांस इट्स ट्रांसपेरेंसी and contribute toward the global security etc. Okay, and expert operational यहाँ पे कुछ हो सकता है, restraint methods etc. ठीक है, and different other information मैं आपको बाद में provide करता हूँ. ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है different monitor progress members implementing necessary measures. Okay, तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए exactly वो स्टेप ले रहे या नहीं ले रहे, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए क्या कर रहे, तो इनका मॉनिटर करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा FATF. सो इम्पैक्ट क्या है इसका भी. So it has gained the considerable influence over the regulatory framework that deals with the financing transaction, and in an attempt to make it less liable to exploitation for both, you can say different proliferators हो गए, terrorist हो गए, and FATF अगर देखा जाए तो United Nations, its efforts have been conjunction with the relevant resolution of the United Nations Security Council. Okay, तो इनके भी इसमें अगर मोस्टली बहुत सारे वर्क अगर देखा जाए तो ये कोलैटरल वर्क कुछ करते हैं. ओके, सो to fight against the money laundering and combat finance the terrorism. Okay, तो ये एक मेंशन कर सकते हो आप. So बाद में आपको ये फॉरवर्ड करता हूँ, but the necessary things is in the entire this part. So only question is of 10 marks. Okay, so मेंशन इतना ही करो यहाँ पे ज्यादातर कि जैसे कि रोल क्या है FATF का, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट with the current example. Okay, and countering trans-border या transnational terrorism. Okay, transnational terrorism. And with the example, recent example of the India, so अगर हम देखते हैं, so India के बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो. So that is about it also, मतलब वार्निंग ग्रे लिस्ट के ऐसे कुछ वार्निंग नहीं है इंडिया के लिए, बट जो रिसेंट इनका रिपोर्ट रिलीज हुआ था FATF का, so in that they have mentioned that कि इंडिया में जो इलीगल जो इसका मतलब वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होता है, so that is the core point. Okay, so that is the notable point. Okay, so इसको इंडिया को क्या करना है, ओवर द टाइम कम करना पड़ेगा. ठीक है, so ये कुछ पॉइंट्स है. so I don't think कि इससे ज्यादा हम इसमें कुछ लिख सकते हैं, because very short question is that. Okay, so ज्यादा हम इसमें जा नहीं सकते. so directly you can move to the conclusion. and therefore any blacklisting of country cuts the lifeline of the terrorist activity. yes, इससे blacklisting अगर होता है तो शायद वो मतलब इंटरनेशनल प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं. So by state to the blockage of the funds, yes, definitely. And does FATF act as a pressure group, helping in combating terrorism and money laundering, right?
and FATF played an important role in acting as a standard body to put a pressure on terrorism funding and okay, so that is the role of FATF. ठीक है, तो इन शॉर्ट जितना पॉसिबल है तो हमें लिखना है, बिकॉज इसमें ज्यादा हम कुछ इंटर रिलेशन एक्सेट्रा नहीं रख सकते, ठीक है। सो चाहिए तो फिर इंटरपोल एक्सेट्रा, बाकी आप लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्कोप है, बट इट्स लाइक ए शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने अगर इतने भी पॉइंट मेजर रोल अगर उनका हाईलाइट कर दिया, सो बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको ये एक्सप्रेशन फॉरवर्ड कर देता हूँ, सो विल चेक दिस, ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट? यस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, फाइन। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन नक्सलिज्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो, ओके। सो इसमें बहुत सारी कुछ चीजें आ सकती है, एंड करंट में भी आ सकता है कुछ, ठीक है। सो मेंशन क्रिटिकली एनालाइज द नैरेटिव डिस्कोर्स ऑफ अर्बन नक्सलिज्म, ठीक है। तो अर्बन हमें नक्सलिज्म वहां पे नोट करना है, एंड व्हाट स्टेप शैल बी टेकन टू काउंटर द मीनिंग्स ऑफ द सेम, ओके। तो हमें ये थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे, राइट। तो अर्बन नक्सलिज्म, बाकी तो नक्सलिज्म आपको रेड कॉरिडोर एक्सेट्रा, आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट, सो दैट इज द रेड कॉरिडोर, नीलगिरी टू सिलीगुड़ी पार्ट, ओके। बट ये आइडियोलॉजी अभी थोड़ी बाहर आ रही है, लेकिन अर्बन एरियाज, सो ऐसे इनको मेंशन करना, ओके। सो यू कैन इंट्रोड्यूस विद द सेम रेड कॉरिडोर, और जो भी नक्सलिज्म है उसके बारे में आप फॉर्मली लिख सकते हो, सो दैट इज नॉट द पॉइंट, बट इंट्रोडक्शन में मुझे लगता है कि स्टार्ट करो अर्बन नक्सलिज्म से, सो दैट विल बी बेटर। So Vivek Agnihotri ये बहुत ही famous था, and the making of Buddha in a traffic jams that defines the urban Naxal as the educated people in academia, media, NGOs हो गए, या different urban civil societies, okay, so in who support violent insurrection and against the state, okay। मतलब क्या है कि ये different मतलब अगर हम देखते हैं, so internal threat जो है, तो वो हमें क्या हो रहा है कि हमारे different NGOs हो गए, या different academia या media या universities, तो यहाँ से create हो सकता है possible। So they operate through the mobilizing and organizing industrial workers, setting मतलब एक जनरली इनका एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, एंड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीक्रेट और रिवोल्यूशनरी मास ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ क्रिएट होगा, एंड ऑपरेशन अंडर द ग्रैब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओ, एंटी सुपरजिशन मूवमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये उनके कुछ वेज पॉसिबल हो सकते हैं, ओके। सो urban nationalism is a folktale, we can say that, okay। So anybody raising strong question against the government is being perceived as a urban national, तो ये एक इशू होता है, and there is a sorry, this is a serious malice of democratic India, okay। मतलब anybody raising strong question, so we have to listen that point, मतलब उसको directly हम oppose नहीं कर सकते, so ये हम आगे solution में दे सकते हैं, but right now just mention this point, okay। मतलब यहाँ पे हमें just mention करना है initial phrases, so that after that we can give some remedial point also, यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं। So at substantial level, you can go with this again current example, गोविंद कुट्टी जो कि director आते हैं, so document उनका एक recently वो भी एक publish हुआ था, so that is the CPI Maoist mentioning urban perspective and strategy to be followed by the urban Naxal, ठीक है। तो उसमें उन्होंने mention किया था कि exactly कैसे perspective and strategy to be followed by the urban Naxal, तो ये इसमें मेंशन हुआ था। सो एक बार आप इसको चेक कर लेना, यू विल गेट टू नो व्हाट एवर पॉइंट, बट इसका शॉर्ट यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए। सो यूज ऑफ computers and internet networks to further military objectives of the revolution, and financial supports यहाँ पे faculties को मिलते हैं in JNU and Tata Institute of Social Science हो गए, या to propagate ideological nationalism among the students होगा, and penetrate bureaucracy and paramilitary forces and army also, मतलब यहाँ तक वो penetrate हो चुका है, ठीक है। मतलब इशू क्या हो रहा है कि एंटायर ये अर्बन नक्सलिज्म क्या हो रहा है कि पेनिट्रेट हो रहा है फ्रॉम द डिफरेंट वेल नोन इंस्टीट्यूट जो है, तो वहां तक ये आइडियोलॉजी क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, ओके। सो दैट इज अबाउट, बिकॉज आइडियोलॉजी पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन आई थिंक इट इज 10 मार्क क्वेश्चन, सो यहाँ पे वैसे पूछा ही नहीं कि नक्सलिज्म आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। सो वी ऑलरेडी कंसिडर दैट व्हाट इज नक्सलिज्म, सो डू नॉट वेस्ट योर वर्ड्स इन एक्सप्लेनिंग नक्सलिज्म ओनली, लाइक हाफ ऑफ द आंसर तो हम उसमें ही इन्वेस्ट कर देते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी होगा, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द मेन कोर पॉइंट, दैट इज अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है। सो व्हाट इज द आइडियोलॉजी, सो इट इज प्री डिफाइंड, हमने एक कंसीडर किया कि हाँ चलो ठीक है, नक्सलिज्म यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, सो नाउ इट्स द नेक्स्ट स्टेप, सो दैट इज द अर्बन नक्सलिज्म। सो प्लीज ट्राई टू डिफाइन दोस पॉइंट्स, okay। And in the urban area, the main concentration has to be on the consolidation of the vanguard elements from the industrial proliferation classes, okay।
proletariat class, okay, sorry, this is doubly important considering the present weak working class composition of our party. And a steady supply of urban cadre is necessary to fulfill the needs of the rural movement and people, etc. Okay. So twofold इसमें और approaches हम कर सकते हैं the menace of urban nationalism. So first all we need to stop boycotting criticism. Okay, मतलब क्या है कि हम बहुत ज्यादा criticism नहीं कर सकते हैं. Any strong or radical criticism should not be declared as urban nationalism. मतलब हर कोई oppose कर रहा है, so that doesn't mean कि that will fall under the urban nationalism kind of point होगा, तो वो नहीं है, वो internal threat नहीं है इंडिया को, हर कोई नहीं. मे बी ऐसे कोई अपने खुद के जस्टिस के लिए या खुद के ह्यूमन राइट्स के लिए यहाँ पे शायद वो स्ट्राइक्स कर रहा है या वॉट एवर ही इज अपोजिंग टू द गवर्नमेंट. So any strong or radical criticism should not be declared as a urban nationalism. So we have to study about it कि exactly इसके core point क्या है, grassroots levels क्या है. So we have to find out first, and then we can declare if there is any such like situations हो गए, तब हम उसको ये कर सकते हैं. Respecting the dissent in is a vital feature of the democracy. Okay, respecting the dissent is the vital feature. So talking and discussing their concern is the best way to deal with this. ठीक है, तो इसलिए अभी देखो हमने इवन नक्सलाइट जो एरिया है तो वहां पे भी हमने सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम्स लॉन्च किए थे, ग्रीन हंट प्रोग्राम होगा या जो भी हमने डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए थे. सो दैट शोज कि बहुत सारे अगर देखा जाए तो जितने नक्सलाइट्स है उन्होंने सरेंडर भी किया एंड नाउ दे आर इन द सोशल वेलस्टीम. मतलब अगर देखा जाए सोशल जो इसमें पार्ट है तो वो प्रॉपरली आ चुके हैं, मतलब प्रॉपरली उनका वेलबींग भी हो रहा है. सो ये क्या था कि जस्ट टॉकिंग एंड डिस्कसिंग विद देम एंड प्रॉपर इस पे सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इसको अपोज नहीं कर सकते. सो जो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म होता है, सो एटलीस्ट वी कैन कट डाउन देम. ओके. एंड सेकेंडली अर्बन हु आर वर्किंग विद द एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी टू हार्म द सोशल फैब्रिक फॉर देयर सेल्फिश गेन शुड बी डेल्ट विद द आयरन हैंड्स. और जब अगर ऐसे कोई ग्रास रूट लेवल पे दिख जाता है कि हु इज लाइक पेनिट्रेटिंग दिस आइडिया, ओके, और फॉर देयर पर्सनल मोटिव, तो डेफिनेटली हम उनको पकड़ के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कट डाउन कर सकते हैं. सो लाइक मतलब उनको मेन यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले सकते हैं, नॉट ऑन ऑल. सो सब पे नहीं ले सकते, समझ रहे हैं. तो ऐसे ये सेकंड फेज होना चाहिए. तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन curtailing द प्रोपेगेंडा ऑफ द रियल माइस्ट, okay, and improving intelligence, ensuring the better interstate center state coordination also, and taking up genuine counter campaign and outreach program as the best way to ideological defeat the yes leftist insurgency. ओके. सो एनीवेज लास्ट में हम ले सकते हैं कि कुछ अगर आपको कोट याद आ रहे होंगे तो आप लिख सकते हो लाइक हर्ट एंड माइंड स्ट्रेटजीज एंड आइडिया नीड्स टू बी किल्ड बाय एन आइडिया, नॉट बाय द गन्स ऑलवेज. ओके. सो ऐसे आप अगर आपको कुछ कोट्स याद हो गए तो डेफिनेटली मेंशन दैट. अगर मतलब किसी का पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा है बट एटलीस्ट यू रिमेंबर द कोट्स, सो यू कैन एटलीस्ट पुट द सम कोट्स एट द एंड. ओके. सो कोट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे मार्क्स देके जाएंगे. सो एन आइडिया नीड टू बी किल्ड विद एन आइडिया, नॉट ऑलवेज विद द गन. ओके. सो ऐसे कुछ स्टेप लिखो यहाँ पे एंड बाकी फिर आफ्टर दैट यू कैन गिव द सम कंक्लूजन. So including urban nationalism, including urban national movement is not an entirely internal security issue. With real culprits are rapacious politicians भी हो सकते हैं कि जो इसको penetrate करे for their own gain and sucking the lifeblood of the country. The corrupt bureaucrats भी इसमें हो सकते हैं possibly, who have the amassed fortunes, and the unscrupulous policemen अगर देखा जाए who have nexus with the criminals या नक्सल्स अगर देखा जाए, so they are much a threat to the democratic structure of the country. So ये find out करना हमारा main goal होना चाहिए. Okay, because other जो भी affected है, नक्सलाइट से affected है, so all are not like हम इनको एक similarly behave नहीं, मतलब यहाँ से इनसे ट्रीट नहीं कर सकते. so other एक हम वे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन एग्जैक्टली ये ट्रैप में अटका है. ठीक है. सो उनको हम साइडलाइन कर सकते हैं. सो वी कैन डू दैट एटलीस्ट. सो इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट कंप्रेहेंसिव अप्रोच टू काउंटर menace ऑफ अर्बन एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम द सो अंडरस्टूड एवरीवन. बाकी फिर इसमें क्या है कि डिफरेंट समाधान योजना वगैरह एक्सेट्रा, अगर नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द डिफरेंट स्कीम्स लाइक जस्ट अ सेकंड. ऐसे और क्या देख सकते हैं इसमें. सो अगर क्वेश्चन नक्सलिज्म पे आता है सो यू कैन go with the like this part.
ठीक है, तब तक आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, राइट? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ये कमेटी देख लेना, जस्टिस बी एन कृष्ण, बिकॉज 18 का भी क्वेश्चन था इस पे डायरेक्टली, डेटा सिक्योरिटी पे, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार। सो नाउ लाइक टेररिज्म, जस्ट वेट। हाँ, तो नक्सलिज्म में अगर हम देखते हैं, सो थोड़ा सा आप कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जस्ट सो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। सो लाइक हाँ, नक्सलिज्म में हम देख सकते हैं कि और क्या दे सकते हैं हम। सो लाइक एग्जैक्टली अगर और कुछ क्वेश्चन आ जाता है, राइट, तो एक मिनट आपका क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। Should you mention rehabilitation program being body or conclusion? Yes, you can mention, Saurabh. Yes, definitely you can mention. Okay, so इसमें वैसे जैसे अब प्रॉपर नक्सलिज्म के लिए तो लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आर देयर, लाइक ग्रीन अर्न स्कीम, समाधान योजना, ठीक है, या फिर सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन इज देयर एंड मेनी मोर। ओके, सो आप करंट में कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हो, बट द क्वेश्चन इज अबाउट अर्बन नक्सलिज्म। तो इसके लिए अभी तो कोर ऐसे कुछ डिफरेंट लाइक जो सरेंडर एक स्कीम होगी, तो वो अभी तक कोई ऐसे दिखती नहीं है, ठीक है, बट इफ एनी इज देयर सो यू कैन मेंशन इट, सौरभ। ओके, यस, अंडरस्टूड, ठीक है, बट इफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटली ऑन नक्सलिज्म ओनली, ठीक है, सो नक्सलिज्म अगर अर्बन नक्सल ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, सो यू कैन गो विद दिस। ओके, सो मतलब आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख सकते हो कि कब स्टार्ट हुआ था एंड किसने स्टार्ट किया था। ओके, किस बेसिकली किसकी आइडियोलॉजी थी, या नक्सल 1967 अपराइजिंग इन नक्सलबारी एंड इट इज ओरिजिनेटेड बाय कानू सन्याल एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा बेसिकली जा सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ अ गुड डायग्राम फॉर दैट, बिकॉज अर्बन नक्सलिज्म के लिए प्रॉपर कुछ डायग्राम नहीं होगी, बिकॉज इट स्प्रेड्स इन, मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कि कहाँ पे ये स्प्रेड होगा, कौन से अर्बन एरिया में होगा, ठीक है, बट दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और ओवरऑल द नक्सलिज्म इज लाइक बहुत सालों से अगर देखा जाए तो, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा या प्री इंडिपेंडेंस के भी पार्ट्स में अगर देखोगे आप, सो ये एरिया confined है, so right from the Nilgiri to Siliguri, so you can draw the diagram for this. Okay, so if the question is particularly on the Naxalism only, so तब आप ये diagram ऐसे कुछ draw कर सकते हो, so that will be as red corridor. Okay, so यहाँ पे आप mention कर सकते हो, so that will be red corridor. Okay, क्लियर है? सो यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मेंशन, बट एटलीस्ट यू कैन मेंशन सम ईस्टर्न घाट पार्ट, ओके, राइट फ्रॉम नीलगिरी टू सिलीगुड़ी, तो दैट विल डेफिनेटली गिव अ गुड मार्क्स. So what are the deficit? Okay, so government deficit, social structure of society, or infrastructure deficit, exploitative development. Okay, so मतलब exactly why they transferred toward this like Naxalite या Naxalism ऐसे, मतलब exactly क्या, what are the reasons rise in this Naxalism? So poor implement of land reforms होगा, या justice delivery systems हो गए, या like government deficit पे हम देखते हैं, ठीक है, सो डेफिसिट इन रिहैबिलिटेशन लाइक प्रोग्राम्स हो गए, एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्सेस एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो, ओके, एंड लैक ऑफ सॉइल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता, सो डेफिनेटली दे विल हैव लाइक एक मतलब एक उनको अलग से एक फीलिंग आ सकती है, जहाँ पे जिसको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जेनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, सो दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेट काइंड ऑफ फीलिंग, ओके, सो डेफिनेटली वो फिर और इनहांस होगा, लाइक मतलब उसमें और इंक्रीज हो सकता है, सो लैक ऑफ डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है, एंड इवन ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, तो उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना जरूरी है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि उनको इनसिक्योरिटी जितनी फील होगी, तो दे विल डेफिनेटली डाइवर्ट टुवर्ड दीस इश्यूज, ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरे पॉइंट्स दिए, यू कैन सी दिस, सो डेफिनेटली, बट हाँ, एक एक डिक्लाइन मैप आप शो कर सकते हो कि नक्सलिज्म तो डेफिनेटली कम हो रहा है, बट अर्बन नक्सलिज्म राइज हो रहा है, सो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट, बट एटलीस्ट फ्रॉम पोस्ट 2010, सो देखो ये एलटी मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सो और नक्सलिज्म इज डिक्रीजिंग, ओके, सो गुड गवर्नेंस हम ये देख सकते हैं, हाउ टू टैकल द नक्सलिज्म, सो गुड गवर्नेंस, डायलॉग विद द नक्सल्स एज वेल एज ट्राइबल्स, ओके, सो जो पॉइंट मैंने वहां पे बताया था आपको, एंड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज वेजेस, सो मे बी अगर उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, या एवरीथिंग इज अर्निंग वेल, सो डेफिनेटली दे विल do not engage in this Naxalism like issues. Okay, so Naxal इसमें engage नहीं होंगे, so remove disparity too, ठीक है, तो वो disparity नहीं होनी चाहिए, ठीक है, so there are lots of solution, so you can at least take 5 from this. Okay, so यहाँ पे decline हो रहा है, बस इतना बोल दो, ठीक है, because जो भी डेथ हो रही है, तो एंटायर मतलब कलेक्टिवली अगर देखा जाए, जो कि ब्लू लाइन आपको यहाँ पे दिखती है,
सो डेफिनेटली ओवर द टाइम कम हो रहा है. लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए या इसके टैकल करने के लिए एक समाधान प्रोग्राम है, तो वो भी आप थोड़ा सा मेंशन देख लो आप बाद में गूगल में, ठीक है. सो डेफिनेटली इसकी कंक्लूजन अच्छे से ऑलरेडी हमने देखा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. सो अंडरस्टूड एवरीवन. सो अगर वैसे भी क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करना है, आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है. एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस? यस, एनी क्वेश्चन? Fast. Is there any question? Yes, बाकी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन नहीं किसी का? ठीक है. ओके, फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैंड माइनिंग. ओके, सो इन बिटवीन जो खलिस्तानी है तो वो आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है, बिकॉज उसका तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाकी है. ठीक है, सो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो जो मेनली डिस्कशन होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन हम पहले लेते हैं. ठीक है, सो that is the next is do you consider about the sand mining, as you know that sand mining issue as it prevails in India as a disaster. ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है. Okay, because usually we know about the earthquake, tsunami, volcanism, and biological, etc., etc. So this kind of disasters, but sand mining is like a grassroots level पे ये, मतलब on the very like village level होगा या एक particular local level पे एक sand mining ये बहुत बड़ा issue है all over the India. Okay, so let us discuss about it and substantiate your response also. It is also necessary. Okay, so introduction क्या होगा? So sand is a naturally occurring and definitely you know that it will take a lots of time to formation of this या उसका replenishment होने के लिए बहुत ज़्यादा time लगता है. So material having economic and social and environmental importance definitely, and some anti-social elements like society loots the river sand beyond its natural replenishment capacity. ठीक है, तो जितना उसको replenish के लिए लगता है तो उससे ज़्यादा हम इसको क्या कर रहे हैं, use कर रहे हैं. So according to UNEP report on sand and sustainability, so increasing trend in sand mining is indeed disastrous. Okay, so ये क्या हो सकता है कि disastrous definitely हो सकता है. So now, so what is the exactly issue? So rise in economic industrial development, तो इसकी demand जैसे increase हो रही है, जो यहाँ पे illegal activity related to sand mining क्यों हो रही है? Because development इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, like India is developing nation. Okay, and real estate industry like highly boom हो रही है यहाँ पे. ठीक है. So during the past few decades, definitely, and have aggregated mining of rivers and sand many-fold higher than the natural replenishment capacity. Okay, so which really made host for damage to the river ecosystem in the world. Okay, तो river ecosystem जो है इंडिया होगा या वर्ल्ड होगा, तो इसमें definitely ये क्या होगा, affect होते रहेगा. Okay, so because उतने river यहाँ पे उतने deeper होते जाएगी, तो जितनी river deep होगी, ठीक है, तो अभी ये बाद में आप in short in between mention कर सकते हो. So what is exactly issues associated with the sand mining to the ecosystem, river and ecosystem? So you can also draw the diagram if it is possible. ठीक है, so जितना river deeper जाएगी तो उतने उसके bank जो होंगे, मतलब embankment जो होंगे, तो वो collapse होंगे. जितने embankment collapse होंगे तो river channel यहाँ पे क्या होगा कि deeper होते जाएगा, wider होते जाएगा. ठीक है, so land availability कम हो सकती है and entire ecosystem भी यहाँ पे जो available है, so that will be definitely affecting this part. So देखते हैं in detail. So excessive in-stream sand and gravel mining cause the degradation of river. In-stream mining lowers the stream bottom, which may lead to the bank erosion, okay, and depletion of a stream bed, and along the coastal areas cause the deepening of river estuaries, okay, estuaries, and the enlargement of river mouth and coastal inlets. ठीक है, तो coastal inlets हो सकता है या फिर जो river mouth है, so उसका भी enlargement यहाँ पे possible हो सकता है, and it may lead to the saline water intrusion the nearby sea, means mouth के आसपास जो होगी, and the effect the mining is compounded by the effect of the sea level rise also. Okay, and any volume of the sand exported from the stream bed and coastal areas is lost to the definitely system, and destruction of aquatic riparian habitat, and through the large change in the channel morphology, तो channel entire morphology यहाँ पे क्या हो रही है, change हो रही है, bed coasting and bed degradation, ये सब issues इससे associated है. So at least you can take maximum 2 points from this almost 4 points given. Okay, so channel widening ये हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, producing braided flow, ये सब changes आ सकते हैं. Channel reach become
मोर यूनिफॉर्मली शैलो और डीप, वही पॉइंट्स है, बस आप इसमें से 2 पॉइंट ले लेना कोई भी, ठीक है। एंड अदर सेडिमेंट रिड्यूसिंग हैबिटेट कॉम्प्लेक्सिटी एंड राइफल पूल्स, मतलब क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग पूल्स ऐसे कुछ क्रिएट हो गया कि इन बिटवीन देखो यहाँ पे एकदम डिप्रेशन पार्ट कुछ क्रिएट होगा, तो इससे राइफल पुल्स ऐसे कुछ कहा जाता है, जो मोस्टली सैंड माइनिंग जहाँ पे होता है, तो मोस्टली सैंड माइनिंग के एरियाज में ऐसे राइफल पुल्स क्रिएट होते हैं, राइफल पुल स्ट्रक्चर। और इससे एंड नंबर ऑफ लार्ज प्रेडेटरी फिशेस भी यहाँ पे आ सकते हैं। एंड नेशनल चंबल सेंचुरी रनिंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ यूपी, एमपी, राजस्थान, घड़ियाल्स आर लूजिंग आउट अ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसलिए इसकी वजह से क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये एग्जैक्टली चेंज होने की वजह से, फिर यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल आप करंट एग्जांपल दे सकते हो, so that is the Chambal River. Okay, Chambal Badlands etc. So वो एरियाज आप इसमें एज ए एग्जांपल दे सकते हो। और इसी वजह से फिर जो घड़ियाल यहाँ पे फेमस है, तो उनका मे बी पॉपुलेशन यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। So major habitat disruption favored some species over the other, cause overall decline in the biological diversity and productivity also. So in most streams, riverine habitat quality is strongly linked to the stability of channel and bed and different banks also. And after that, many hectares of fertile stream bed and lost annually, as well as valuable timber resources, wildlife habitats, riparian areas. तो ये भी डिक्रीज होगी, बिकॉज जितना वाइडर होगा एंगल यहाँ पे चैनल से, उतने ट्रीज भी यहाँ पे फेल होंगे। ओके, मतलब उतना प्रॉपर ट्रीज के लिए प्रॉपर यहाँ पे मतलब जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी है, सो दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस ओवर द टाइम। सो जितना यहाँ पे फॉरेस्टेशन एरिया वो डिक्रीज होगा, सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज विल आल्सो डिप्लीट। ओके, तो प्रॉपर जो ट्रीज की वजह से यहाँ पे क्या है, रूट पेनिट्रेशन जितना ज्यादा है, तो उतना ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इफ फॉरेस्ट इज नॉट देयर, इफ ट्रीज इज नॉट देयर, सो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज आल्सो। सो वो भी एक इशू आने वाले टाइम में यहाँ पे पॉसिबल है, और एंटायर बायोडाइवर्सिटी विल कोलैप्स इन दिस रीजन। ओके, सो ये पॉइंट्स आप थोड़े से मेंशन कर लो इन शॉर्ट। Okay, and finally the conclusion is that so man has only thin layer of soil between him and starvation, definitely, तो इससे entire आने वाले issues हो सकते हैं, and help it or hurt it, this is yours। okay, ऐसे कोट फाइनली कुछ ना कुछ तो कोट आपको देखे जाना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर गांधी जी का कोट दे सकते हो, सो एनवायरमेंट हैज लॉट ऑफ विद अस, ठीक है, फॉर टू फुलफिल आवर नीड फॉर द इन्फिनाइट टाइम, बट इफ वी try to fulfill our grid, so it have very less। okay, मतलब hardly it will end up, it will not it will be unsustainable। okay, so that is not sustainable solution, so we have to use it sustainably। ऐसे नहीं कि यूज नहीं करना है, बट यूज हम कर सकते हैं, बट उसकी जो रिप्लेसमेंट कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। सो इट इज यूज इट वाइजली एंड सस्टेनेबली with the regulated manner। okay, so we have to use it with the regulated manner। okay, yes, understood। yes, artificial sand, yes, artificial sand भी दे सकते हैं। now you can give the solutions। okay, so mostly sand कहाँ पे use हो रही है कि mostly in the like with the cement ऐसे कुछ होती है, so you can give the example of yes कि artificial sand हम इसमें use कर सकते हैं। तो now what are the solutions, can you please suggest me, so what should be the solution on this? okay, as a bureaucrat, what will be the solution? yes, tell me fast, क्या solution होगी इस पे? sand from, okay, next और क्या हो सकता है? fast, give me your suggestions। आपके सजेशंस क्या है इस पे? फास्ट, बस इतने दोनों दोनों ही लोगों को आ रहा है, बाकी कुछ किसको आ रहा नहीं है। कि सैंड माइनिंग में क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे कितना इशू है, लाइक महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ इशू विद दिस सेम। ओके, कभी कभी तो तहसीलदार होते हैं, या इवन कुछ स्टेट में तो ऐसा है, तो डायरेक्ट गाड़ी चढ़ा देती है, जो सैंड माफिया जो जिसको हम बोलते हैं। सो सैंड माफिया, हाँ यस, दैट इज द, वी हैव टू कर्ब द सैंड माफिया। ओके, recycle, yes, yes, recycle plastic, very nice point, Vedanti। so that is recycled plastic or fly ash can be used with the cement। okay, so that will be the good solution। okay, so fly ash, we can use the fly ash, so we have to change what is the exactly the need। okay, and एक थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन हमें यहाँ पे करना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस हमें क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे। allow government efforts and civil society awareness, yes, definitely, and we have to educate the people which are residing over this river bank, or where exactly the sand mining is happening। so we can, if we educate those people, okay, so those community,
ओके सो डेफिनेटली दे विल अवेयर अबाउट इट ओके बिकॉज उनको पता ही नहीं ना क्या हो रहा है अभी हमें भी अगर यूपीएससी पढ़ रहे हैं इसलिए पता है ठीक है बट एग्जैक्टली इसकी वजह से होता क्या है ठीक है तो ये हमें वहां पे ग्रास रूट लेवल पे एजुकेट करना पड़ेगा सो दैट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज बेटर वन ओके जितना देखो जलयुक्त शिवार स्कीम है फॉर एग्जांपल या जितने भी आईडब्ल्यूएमपी अगर देखा जाए सो इट्स लाइक अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इवन नमामि गंगा मिशन सो वैसे तो गैप तो कितने सालों से रन हो रहा था गंगा एक्शन प्लान बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल बट नमामि गंगा इज एटलीस्ट कंपैरेटिवली इट इज सक्सेसफुल बिकॉज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज देयर अप टू ग्राम सभा इसमें इंक्लूड होती है बिकॉज नाउ द पीपल और द कम्युनिटी सो वो अभी अवेयर है यहाँ पे okay so there should be vulnerability so the word vulnerability is very very important so public awareness for the conservation okay yes that is the point yes Ganesh but because it is now we are considering it as a disaster even United Nations mentioned that it is a disastrous condition okay but हम क्या एक सोचते हैं generally just a second so now what we exactly think so what is exactly the disaster so we know about earthquake tsunami volcanism etc so disaster means what so when hazard meets vulnerability okay so when hazard meets vulnerability so then we will call it as a disaster okay so what is vulnerability so when पर्टिकुलर लाइक जैसे साइक्लोन से हम बोलते हैं कि साइक्लोन के एरियाज में अगर लोग यहाँ पे रिसाइड करते हैं ठीक है सो दे आर वल्नरेबल टू दैट सो नॉट लाइक विदर्भ एरिया ऑफ महाराष्ट्र लाइक इंटीरियर पार्ट ऑफ कर्नाटका लाइक राजस्थान इज नॉट अफेक्टेड विद द साइक्लोन सो दे आर नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन बट साइक्लोन से वल्नरेबल क्या है कि कोस्टल स्टेट्स हो गए so they are vulnerable but if and hazard is what that is the cyclone is the hazard okay so cyclone is the hazard and what is vulnerable situation so all the habitation which reside in that particular region so अगर ऐसे अगर हम कंसीडर करते हैं पैसिफिक में कुछ आइलैंड है इन बिटवीन so if there is island in Pacific so nobody is residing over not मतलब habitable ही नहीं है वो ठीक है एंड वहां पे अगर साइक्लोन होता है so what should we call it as disaster no because disaster यहाँ पे क्या है कि कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो डिजास्टर कैसे होगा समझ रहे हैं आपको So when we are considering sand mining is as a disaster, so we should have to know. So चलो हमें ये तो पता है कि चलो sand mining is the hazard. Yes, it's fine. But what is the vulnerable? So vulnerable तभी होगा कि जब लोगों को इससे affect हो रहा है. So whenever the मतलब overall the community is going to be affected, so then इट विल कॉल्ड एज अ डिजास्टर सो चलो यूनाइटेड नेशन बोलने से तो नहीं होगा तो लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि आप लोग कैसे अफेक्ट हो रहे हो अंडरस्टूड सो जैसे लोगों को अफेक्ट उसका समझ जाएगा या फिर दे विल गेट एजुकेटेड विद दिस सो डेफिनेटली दे विल नो द वल्नरेबिलिटी ओके सो उनको समझ जाएगा कि क्या वल्नरेबिलिटी एंड नाउ एवरीवन इज लुक लाइक अ डिजास्टर तो फिर उससे हम क्या करेंगे ज्यादा डील कर सकते हैं ओके सो दैट इज द पॉइंट ठीक है तो हम यहाँ पे एज अ ब्यूरोक्रेट तो हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं लोगों को एजुकेट कर सकते हैं स्प्रेड द एजुकेशन अबाउट दैट ओके सो उतना तो हम डेफिनेटली पॉसिबली कर सकते हैं सो दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट एंड अदर पॉइंट हम देखेंगे तो फिर बाकी पब्लिक अवेयरनेस एक्सेट्रा यू कैन डू दोस एग्जांपल राइट यस अंडरस्टूड एवरीवन यस strict laws and etc yes stringent provisions of law and offenders etc okay so you can give this examples clear यहाँ तक सबको yes great okay चलो next question देखते हैं what are the structural deficiencies in disaster preparedness and management in India you can mention the steps needed to augment disaster financing in India okay so what are the structural deficiencies यहाँ पे क्या पूछे structural क्या क्या deficiencies है in disaster preparedness and management दोनों भी अलग अलग पॉइंट है management and preparedness तो यहाँ पे आप पार्ट कर सकते हो so structural deficiencies ये पहले आपको हाईलाइट करना है then second is the preparedness में क्या deficiencies है and third management में क्या deficiencies है and now the step is the fourth part there are almost 4 part of the question okay so as per the United Nation बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जैसे accordingly आप लिखते हो तो a disaster is a serious disruption of the human functioning or community involving widespread of human material and economic जो damages होते हैं losses होते हैं environmental losses but it must have to go beyond your coping capacity okay so coping capacity मतलब 3 word important है so that is hazard vulnerability plus coping capacity goes beyond the coping capacity so then it will be known as the disaster okay and structural deficiencies in disaster management in India so that is the disaster preparedness में थोड़े कुछ issues है so lack of awareness in population about the disaster resilience okay तो disaster resilient कैसे होना है तो उसका knowledge ही नहीं है कि जैसे आप coastal area में रह रहे हो तो रिसेंटली देखो ये अभी एक अच्छा है मतलब इसको हम काउंटर भी दे सकते हैं कि सम केस स्टडी भी दे सकते हैं so like सुनामी
रेडी जोन्स ऐसे कुछ डिक्लेयर हुआ है उड़ीसा में. ओके, सो एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द विलेजेस, बट वो जो 2 विलेजेस है, ठीक है, तो दैट इज द मतलब एशिया में, एंटायर एशिया में सुनामी रेडी जोन्स है, मतलब ट्राइबल अगर देखा जाए तो वो प्रिपेयर्ड है. सो वो रेजिलिएंट स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है, बट एवरी मतलब एंटायर इंडिया के अगर कोर्स देखा जाए या अदर स्टेट है, सो दे आर नॉट लाइक मोर रेजिलिएंट. ओके, सो रेजिलियंस यहाँ पे क्रिएट होना जरूरी है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, okay, in between the center, state and armed forces and police forces and NGO, private sectors and community, etc. Okay, and lack of robust early warning system, forecasting उतना possible नहीं है इंडिया में. Like if you see about the earthquake या even cyclone के लिए देखते हो, so उतना early warning centers हमारे क्या है कि more develop होना जरूरी है. Like we do have INQUEST center. Okay, so INQUEST जो center है हैदराबाद में, so that gives us warning 24/7 for the tsunami. Okay, so वैसे ही सेंटर्स और अगर साइक्लोन के लिए मोर डेवलप होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग डेटा इज मोर अपडेटेड होता है, सो डेफिनेटली वी विल बी प्रिपेयर फॉर दैट. बट स्टिल इट इज लैकिंग लैक ऑफ स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टाइज. ओके, जो रेस्क्यू टीम्स रहते हैं तो उनके पास उतने ये नहीं रहेगा, एंड इवन डिजास्टर इंजीनियर्स उतने प्रॉपरली नहीं है. अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स के इश्यूज है, लैक ऑफ एनडीआरएफ फोर्सेस, इवन ओनली 30 एंटायर इंडिया में 13 सिर्फ एनडीआरएफ के फोर्सेस है, ठीक है, 13 टीम्स है. ओके, सो इसमें हमें इंक्रीज करना है, इवन इनके ट्रेनिंग में भी या परफॉर्मेंस जो है तो वो भी इंक्रीज करना है. सो अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट, डायरेक्टली आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट केरला फ्लड 18 में जो आया था, तो एनडीआरएफ परफॉर्मेंस इज इनइफेक्टिव. सो दैट मींस इनके ट्रेनिंग में कुछ तो भी लैकिंग है, ठीक है, बट आप डायरेक्ट क्रिटिसाइज मत करो. सो अगर कोई रिपोर्ट में आपने पढ़ा है तभी ये सजेस्ट करना, अदरवाइज डू नॉट डायरेक्टली लाइक परफॉर्मेंस पे चैलेंज नहीं करना, ठीक है. तो वो थोड़ा सा याद रखना आपको, राइट. यस, यस, एनी क्वेश्चन? Yes, Tsunami Ready Village. Yes. Thank you, Dr. Saili. So Venkat Raipur and Nola Saili. Yes. So that is the Tsunami Ready. So that 2 villages in this Odisha part. Okay. So वो अभी मतलब यूनेस्को ने ऐसे डिक्लेयर किया था, तो इंडिया में फर्स्ट है. और इनकी हम केस स्टडी दे सकते हैं. लाइक इन्होंने मतलब एक से ट्राइबल एरियाज है, और अगर इफ दे आर प्रिपेयर्ड, सो डेफिनेटली व्हाई अदर स्टेट कांट बी प्रिपेयर्ड. सो आप वो एक केस स्टडी दे सकते हो. ओके, सो उनके लिए स्टडी करेंगे. सो एनीवेज, सो कम टू द पॉइंट. सो डिजास्टर रिस्पांस में हमारी लैक ऑफ मतलब रिस्पांस मतलब जब आता है एग्जैक्टली तब हम ड्यूरिंग डिजास्टर फेज होती है, एंड रिहेबिलिटेशन मतलब आफ्टर डिजास्टर, प्रिपेयर्डनेस मतलब प्री डिजास्टर. ओके, ये तीनों फेज में क्या क्या लैकिंग है हम अलग अलग से आपको देना चाहिए. So lack of level support and in disaster rehabilitation. So what is the issue? So disaster norms are more skewed and toward the rural areas. एक एग्रीकल्चर लाइवलीहुड हो गए तो उसके लिए थोड़े से चेंजेस है. फाइनेंशियल सपोर्ट एंड करप्शन आल्सो इज देयर, ठीक है. मतलब कोई रिहेबिलिटेशन होता है तो ये बीच में ही ब्यूरोक्रेट जो होते हैं या व्हाटएवर यहाँ पे डिफरेंट पुलिस फोर्सेस हो गया, ओवरऑल जो भी एक सिस्टम है फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, सो ये थोड़ी सी अगर करप्ट होगी तो उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाएगा. सो दैट इज द वेरी वेरी बिग कंसर्न. एंड बेनिफिशियरीज ऑफ रिलीफ फंड आर नॉट चूजन इंक्लूसिवली. ओके, तो रिलीफ फंड के लिए जो प्रॉपरली मतलब एक होना चाहिए सिलेक्शन की एग्जैक्टली हु इज गोइंग टू गेट द हु इज लाइक हमें ये जो प्रायोरिटाइज करना है. सो हु इज नीड ऑफ द जो आर होगी तो सबसे ज्यादा किसको है. ओके, सो उसका प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे होना बहुत जरूरी है. सो इनको इवन रिहेबिलिटेशन हम और मेंशन कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस असिस्टेंस, ओके, सो उनको साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है, बिकॉज दे लॉस्ट ऑलमोस्ट देयर फैमिलीज इन सच लाइक अ डिजास्टर. तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये इंडिया में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है. सो वी हैव टू डू देयर काउंसलिंग, देन लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक होना चाहिए, राइट. देन आफ्टर दैट हेल्थ सपोर्ट एक होगा, या आफ्टर दिस डिजास्टर जो भी अफेक्ट हो गए, सो ओनली फाइनेंशियल एड इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम. सो डेफिनेटली जो अफेक्टेड है लाइक एजुकेशन इनको हम दे सकते हैं, मतलब जो भी लाइक यहाँ पे चाइल्ड्स हो गए अगर वो सर्वाइव हो गए इसमें तो उनका एजुकेशन, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग डिफरेंट एनजीओस के थ्रू एटलीस्ट कर सकते हैं. इफ नॉट गवर्नमेंट इज नॉट मतलब पॉसिबल टू डू दैट, बट एटलीस्ट वी कैन डू इट थ्रू द एनजीओस, डिफरेंट एनजीओस, ठीक है. तो एनजीओ के थ्रू हमें ऐसे कुछ वर्क करने चाहिए. सो दैट इज द पॉइंट. ओके, सो ऐसे आप बहुत सारे सॉल्यूशंस है कि जो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जो रिहेबिलिटेशन में होना चाहिए. ओके, रिहेबिलिटेशन में यस दैट मस्ट हैव टू बी डन. एंड इवन अबाउट द शेल्टर. सो व्हाट अबाउट द शेल्टर? सो इनका एग्जैक्टली शेल्टर लॉस हो जाता है. जस्ट इमेजिन गाइस, हमें एक हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए एटलीस्ट इट विल टेक 1 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर. ओके, सो
अगर इनको तब तक मतलब शेल्टर की जो पॉसिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट गिव द कैंप, डिफरेंट कैंप, एंड वहां पे भी सैनिटरी कंडीशंस कैसे वो पता नहीं होता है. सो गुड सैनिटरी कंडीशन शुड बी देयर, बिकॉज स्प्रेड ऑफ डिसीजेस ये पॉसिबल हो सकते हैं जब डिजास्टर आके हो, मतलब निकल जाता है तब. ओके, सो वो रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स होता है और जो डिफरेंट लाइक इट्स लाइक अ कैंप जो हो गए, नॉट रेफ्यूजी बट जो भी कैंप्स हो गए, तो वहां पे एक प्रॉपर हेल्थ और डिफरेंट स्प्रेड ऑफ डिसीज ये कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो प्रॉपर शेल्टर एंड एटलीस्ट टिल देन कि टिल देन होना चाहिए कि एटलीस्ट जब तक उनका एंटायर खुद का एक एश्योर्ड यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें अगर हम थोड़ा आगे निकल जाता है, सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में अगेन वो साइकिल में आता है. सो वी हैव टू go with the more resilience, that is the DRR. You can mention Sendai framework also. So that is the Sendai framework. Do you know about Sendai framework? So what is Sendai framework exactly? Yes, can you please tell me that? What is Sendai framework? Yes, 15, but उसके बाद क्या? What after it? For infrastructure? No, not for infrastructure. Only infrastructure. What is the title of the Sendai framework? How many targets are there in Sendai framework? So ये must है, because इस पे क्वेश्चन भी आके गया था. Yes, now it is fine. बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हो? अब आप भी आंसर करो ना. सिर्फ एक दो ही स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं. So kindly be active in the class. What is Sendai framework? Yes, I'm waiting for your replies. Fast. Yes. Now I'm getting. So very nice. Disaster risk reduction, reduction of disaster risk and losses and lives, livelihood. Okay, great. Okay. So देखो guys, ये बहुत important है. एंड जहाँ पे पॉसिबल है वहां पे दे दो, ठीक है. बिकॉज इन्होंने क्या पूछा है कि लैक क्या है. सो इफ यू वांट टू फिल दिस लैकिंग पॉइंट्स, ओके, सो वी कैन फॉलो द डिजास्टर जो रिस्क रिडक्शन है और वट एवर द जो सेंडाई फ्रेमवर्क है. सो इफ वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दो सेंडाई फ्रेमवर्क, सो इट विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस रिगार्ड. ओके, मतलब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि डेफिनेटली जो लॉसेस है वो कम कर सकते हैं. Okay, so for like this, just a second. Just a second. So that is the like disaster management. ये preparedness होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो हम कभी बाद में देखेंगे डेफिनेटली. सो यहाँ पे बाकी बॉडीज भी आप एक बार देख लेना डिजास्टर से टैकल करने के लिए एजेंसीज इन्वॉल्व. सो दैट इज एनडीएमए, एसडीएमए एंड डीडीएमए. एनडीएमए हेड दैट इज प्राइम मिनिस्टर, एसडीएमए हेड दैट इज द हमारे जो स्टेट के ये हो गए चीफ मिनिस्टर हो गए, वो हो गए. एंड ऑन द स्टेट लेवल, ओके, सो दैट विल बी आईएस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ओके, सो ये जो सिस्टम है, एंटायर सिस्टम, सो इट इज द एपेक्स बॉडी. एनडीएमए इज द एपेक्स बॉडी एंड ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया अंडर द 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट गाइडलाइन पे भी क्वेश्चन आके गया था, तो गाइडलाइन भी देख लेना. एनडीआरएफ की टीम देखो, ओनली 13, हाँ 12 टीम, सॉरी, आई थिंक 13 होने चाहिए. एक टीम यहाँ पे मे बी इंक्लूडेड नहीं है नीचे, तो आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हो. सो दीज आर द टीम ऑफ द एनडीआरएफ. हर एक रीजन में कौन सा, लाइक आप देख सकते हो कोलकाता में वेस्ट बंगाल एनडीआरएफ टीम इज देयर, गुवाहाटी आसाम इज देयर, पुणे महाराष्ट्र सीआरपीएफ टीम यहाँ पे वर्क करते हैं. सो मतलब मोस्टली ऐसे अलग से इनकी ये नहीं होते, तो उसमें इंक्लूडेड होता है, राइट. सो देन आफ्टर दैट, सो जस्ट वेट अप. So that is the about the framework, Sendai framework. Okay, so write the targets that which we have to attain from 2015 to, yes, that is 2015 to 2030, and it is the extension of Hyogo Convention. Okay, इसके पहले क्या था, Hyogo Convention था और उसका ही 2005 to 15 10 years का था, and now it is 15 years program. So we have 7 targets. मतलब इन सेंडा फ्रेमवर्क देयर इज द 7 टारगेट्स. तो देखते हैं क्या क्या है.
So Sendai framework for disaster risk reduction, DRR, you must have to know, and it is under the UNISTR, United Nation के अंदर ये रहेगा, United Nation Office for Disaster Risk Reduction. Okay, and in this program, okay, so यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कुछ targets, 7 targets. Okay, so you must have to know about the 7 framework targets है, which is a subsidiary of Yogo framework. Okay, जो कि 5 to 15 था. Okay, and after that you have to must you have to know about these targets. So we have to reduce the reduce नहीं रहेगा, 4 reduce है plus 3 increase है. So what 4 plus 3? ऐसे कुछ याद रखो, 4 plus 3. So that is the disaster mortality by 2030. Reduce the disaster mortality by 2030. Number of affected people means nothing but vulnerability. Reduce vulnerability by 2030. Economic losses, reduce economic losses by 2030. Infrastructure and damage, reduce the infrastructure and damage by 2030. And increase disaster risk resilience, national local strategies by 2020. And international cooperation increase करना है by 2030, so that हमें different technologies etc. जैसे कि Sendai is the itself a model of Japan in Japan. So जो कि एक Sendai city बहुत अच्छा एक tsunami resistant model उन्होंने एक city develop किया. So such a kind of जो हम एक definitely क्या ले सकते हैं कि models ले सकते हैं different countries से, and technology यहाँ पे share हो सकती है. So that is about it. International cooperation for the financial mechanism or technical sharing यहाँ पे possible होना चाहिए 2030 तक. And अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन, ये भी अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा अर्लीस्ट जितना पॉसिबल होगा तो उतना 2030 तक इंक्रीज करना. ओनली वन टारगेट इज दैट, सो डीआरआर डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस नेशनल एंड लोकल स्ट्रेटजीज वो 2020 तक करना, अदरवाइज एवरी टारगेट इज लाइक अप टू 2030. ओके, सो दैट्स द ऑल पॉइंट ऑफ 7 टारगेट्स ऑफ दिस सेंडा फ्रेमवर्क. एंड ये मस्ट आपको मतलब ये मस्ट मेंशन करना, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है, इस पे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इफ यू मेंशन दिस टारगेट्स, सो यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, so what you can do, so what are the structural deficiencies? Okay, so just a minute. So what are the structural deficiencies? Okay, so ये हमने देखा कि क्या क्या है तीनों भी फेस में. So pre disaster, post disaster, sorry during disaster and post disaster. So वो deficiencies हमने देखे. Okay, and if you want to yes mention the steps needed to augment disaster financing. Okay, तो फाइनेंसिंग वो तो चलो हम देख लेंगे आगे, बट एक एक ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपको सेंडाई फ्रेमवर्क का भी थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होगा. ओके, एंड रही बात फिर फाइनेंसिंग की, सो डिजास्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया, सो दैट इज एनडीआरएफ, नेशनल कैलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड, एनसीसीएफ वाज रीनेम्ड एज अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ. ये एनडीआर में के अंदर ही आता है, एंड एनडीआर में डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है. Okay, so with the enactment with the Disaster Management Act in 2005, so इसमें डिफरेंटली फिर फंडिंग उनका किया जाएगा. ठीक है, सो डिफरेंट कौन से लिस्ट में आता है वो भी बाद में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. एंड एनीवेज बेटर प्रिवेंट, प्रिवेंशन और प्रिपेयर देन द रिपेंट और रिपेयर, ऐसे आप कुछ कोड दे सकते हो यहाँ पे. सो मतलब प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है rather than repent and repair. ओके, मतलब पहले ही अच्छे से आप करो, ड्यूरिंग डिजास्टर में सब खेलने से बेटर है कि जो प्री डिजास्टर फेज होती है, प्रिपेयर्डनेस होती है, सो दैट शुड बी एट गुड लेवल. ओके, और ये हम मिटिगेशन से समझ सकते हैं. सो मिटिगेशन मतलब पहले हमने जो किया था इशू फेस किया था, सो उसका असेसमेंट करो, उसका मिटिगेशन करो, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रॉपरली प्लान आउट द डिफरेंट, यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि डिफरेंटली आप यहाँ पे प्रॉपरली प्लान कर सकते हो फॉर और हाउ टू प्रिपेयर विद द नेक्स्ट disaster. Okay, so to ensure effective disaster management, enabling the state and local government and augmenting disaster financing with the rising uncertainty. Right. Okay, understood everyone? तो यहाँ तक मुझे लगता है sufficient है. So any question up to this? Yes. First. First, any question? Is there any question? Okay, fine. So चलो next देखते हैं. So
Describe the mandate of different border agencies guarding India's international border. ये थोड़ा lengthy question होगा. And do you think that there is a need for a single agency for protection of all borders? Justify your answer. Okay. So now, so several policies agencies, policy making agencies work in India. Among them, Ministry of Home Office regulates the central CAPF अगर देखा जाए India's international, and they are classified accordingly. Okay, so if you see this, so there are lots of agencies like CAPF, paramilitary forces, या other security agencies. Okay, so like a CAPF, ये मेन मतलब आर्मी फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, सॉरी इसमें मेन आर्मी फोर्सेस में BSF, SSB होगा, ITBP है, CRPF है, CIPF है, तो NSG एक्सेट्रा ये सब आते हैं. एंड पैरामिलिट्री में कौन से आते हैं? सो असम राइफल्स हो गई या अदर लाइक BRO एक्सेट्रा. एंड अदर इसमें देखा जाए जो इंटेलिजेंस एजेंसी देख सकते हैं IB, NIA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसमें आते हैं. ठीक है, सो ऐसे कुछ हमारे एजेंसीज है. एटलीस्ट जितना पॉसिबल है उतना लिखो, जितना याद आ रहा है आपको, एटलीस्ट यू शुड हैव टू मेंशन. सो जैसे कि हर एक एजेंसी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. ये प्रोवाइड किया है मैंने BSF के बारे में, आप लिख सकते हो. ओके, दिन जितने IT मतलब इन शॉर्ट लिखना है आपको, इतना सब लिखना नहीं है, बट एटलीस्ट इन शॉर्ट यू हैव टू राइट अबाउट इट. ओके, सो SSB होगा, जितना भी दिया है तो वो आप इन शॉर्ट, बिकॉज क्वेश्चन ही वैसा है हमारा. ओके, सो दैट इज रिलेटेड टू द several describe the mandate of different border agencies guarding India's international border. Okay, so do you think that there is a need of single agency? तो अब इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करते हैं. So यहाँ पे देख सकते हैं India is a land of different geographic terrain and surrounding borders. So unifying the forces to form a single bordering force won't help. Okay, so ये उतना हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज हर एक देखो हर एक रीजन के लिए हमने अलग अलग कुछ फोर्सेस क्रिएट किया. लाइक BSF होगा तो वो पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर के लिए वर्क कर रहा है. और ये सेम बॉर्डर अगर देखा जाए, सो इट इज नॉट इक्वल्स टू द नेपाल एंड भूटान बॉर्डर, बिकॉज ये हार्ड टेरियन है. तो इनका ट्रेनिंग एक्सेट्रा थोड़े से अलग लेवल पे होगा. सो दैट इज द सशस्त्र सीमा बल अगर देखा जाए, या ITBP देख लो आप, तो इनका टेरियन कंप्लीटली चेंज होता है. सो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे इनका लोकेशन होगा. According to the geographical terrain is more desirable. Okay, so present mechanism of various border force should continue with the increasing cooperation between them. तो हम कॉपरेशन तो इंक्रीज कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, इवन कंप्रेहेंसिव इनकी ट्रेनिंग कुछ लग सकते हैं कि मे बी एक दूसरे के ट्रेनिंग में भी यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है. ठीक है, जैसे हम मिलिट्री एक्सरसाइज रखते हैं तो वैसे ही इनके डिफरेंट फोर्सेस में हम क्या सकते हैं कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज रख सकते हैं डिफरेंट. ओके, सो ये कॉपरेशन एक्सेट्रा यहाँ पे इंक्रीज पॉसिबल होगा. ठीक है, तो सो दैट इज द गुड सॉल्यूशन. ऑन अदर हैंड यहाँ पे शिकतकर ऐसे कुछ एक कमिटी है, हैज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश ITC, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ऐसे कुछ एक किया था उन्होंने, एंड यूनिफाइड कमांड ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ऐसे कुछ उन्होंने मेंशन किया था. इंक्रीज कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड इंप्रूव परफॉर्मेंसेस, एंड आइडिया फॉलोड वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया शुडंट वेट. सो ऐसे उन्होंने जस्ट कुछ मेंशन किया था कि ऐसे ऐसे कंपाइलेशन होना चाहिए, बट एक्चुअली हमारा पर्सपेक्टिव मतलब मोस्टली वही होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टेरियंस है तो आप वहां पे अलग ही फोर्सेस रहेगा. सो दैट शुड बी द बेटर वन. So three integrated theater command should be established to cooperate China border, Pakistan border, and southern maritime security than a single bordering agency. Okay, so ऐसा finally कुछ conclusion दे सकते हैं. Clear, everyone? Yes. ठीक है. So mostly other information मैंने यहाँ पे provide किया है, so you can go with that particular detail. Okay. Yes. Okay, great. ठीक है, so चलेगा. सो यहाँ तक ही कुछ क्वेश्चन थे. आई थिंक 7 and 8 जो क्वेश्चन है तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेक. सो थोड़ा सा इनका हम देखते हैं, दैट इज डिफरेंट. ओके, सो ये मैं थोड़ा आपको वैसे तो प्रोवाइड कर दूंगा इसके बारे में. सो क्रिटिकली एनालाइज द एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द इंडिया टू इंश्योर पीसफुल. यस, ये थोड़ा साइंस एंड टेक काइंड ऑफ में आ जाएगा. ठीक है, सो आप थोड़ा साइंस एंड टेक अच्छे से एक बार पढ़ लेना. ठीक है, सो इंडिया टू रिस्पॉन्स पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आफ्टर इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट. व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी in nuclear energy when the world is moving away from it. Okay, so nuclear energy भी exactly हम क्यों इन्वेस्ट ज्यादा करें, ऐसे कुछ क्वेश्चन है. सो एम्बिशियस प्लान टू इंक्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी. अगर देखा जाए इंडिया ने कुछ 2052 तक अगर कुछ ऐसे टारगेट्स किए, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स आर देयर, एंड इंडिया हैज अ लार्जली इंडिजिनियसली न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा नीड ऐसे ही बता दो कि इंडिया इज मोस्टली रिलाई ऑन द coal energy. Okay, so almost 60% of Indian energy, okay, so that is provided by thermal power plants, and definitely it is leading toward the
ऐश अगर होगा या इट इज नॉट अ क्लीन सोल मतलब क्लीन एनर्जी सोर्स, ओके, सो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, लाइक CO2 इमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हम दे सकते हैं, सो इंडिया नीड्स अ एश्योर्ड क्लीन एनर्जी सोर्स एंड इंडियाज ऑब्वियसली हमें क्या है कि ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, सो वी कैन नॉट सपोर्ट लाइक सोलर हम यहाँ पे जनरेट करें, डेफिनेटली इंडिया ने जो 450 गीगावाट रिसेंटली टारगेट इंक्रीज किया है, सो INDC में हमने जो कमिटमेंट किया था पहले इनिशियली 175 गीगावाट का, राइट, so after that we have increased recently we have increased those target to 450 gigawatt that we are going to achieve till 2030 ऐसे कमिटमेंट हमने शो किया, ओके, सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं, लाइक सोलर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी होगी, सो एक्सेट्रा, तो इसमें इसके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ एक ऑप्शन यहाँ पे चाहिए जो कि एश्योर्डली हमें प्रोवाइड करे, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे है कि रूरल एरियाज है, तो दैट स्टिल फेसिंग some electricity related issues, so that's why we have assured resource with us, and apart from that you have to focus on the pollution too, ठीक है, कि pollution भी हमें क्या करना है, कम करना है, because CO2 emission इंडिया में जो अगर इंडिया भी अगर टॉप 5 कंट्रीज में इसलिए CO2 emission में, so just because of this thermal power plant सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से होता है, एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस एक्सेट्रा ये सब या ग्रीन हाउस गैस इमिशन एक्सेट्रा ये भी पॉसिबल है, सो इसलिए हम अभी ट्राई करें कि फॉरेस्टेशन करें, अदरवाइज भी ट्राई करें, बट with that we have to focus on this part also, okay, so because India is outside the nuclear and NPT अगर देखा जाए 34 से largely excludes from trader in nuclear plant and material etc hampered the civil nuclear energy until 2009, and due to earlier trade bans and lack of indigenous uranium India has uniquely been developing a nuclear fuel cycle to expose, मतलब हमारी जो थर्ड स्टेज होती है, नहीं थर्ड नहीं सेकंड स्टेज में, so thorium based plant sorry third phase is that, ओके, सो इंडिया में के पास बहुत सारा थोरियम तो डेफिनेटली है, सो फर्स्ट 2 प्लांट जो होते हैं हमारे मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ओके, सो इंडिया ने 3 स्टेज प्रोग्राम क्यों डेवलप किया है, बिकॉज थर्ड स्टेज में ही क्या होता है कि मोस्टली थोरियम यूज किया जाता है, राइट, एंड फर्स्ट 2 स्टेजेस में अगर आप देखोगे तो उतना थोरियम पॉसिबली मतलब डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, सो हमें जो इम्पोर्टेड यूरेनियम है, सो 235 ना, राइट, 235 रहता है ना, हाँ यस इट इज 235, राइट, तो यूरेनियम 235 जो है तो वो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट, एंड जो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया होगा या फिर कनाडा होगा तो इनसे हम इंपोर्ट कराते हैं एंड उसके बाद ही वो रन होता है, सो कितने टाइम तक हम इंपोर्ट पे रिला रहेंगे, ठीक है, सो इंडिया हैव द गुड डिपॉजिट्स ऑफ द थोरियम, सो थोरियम हम फिर थर्ड स्टेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सो इंडिया ट्राई कर रहा है कि एटलीस्ट जैसे कि क्या नाम है उसका जो कि कैगा, आई थिंक कैगा इज देयर, जो कर्नाटक में है, देखो तो कर्नाटक का जो प्लांट है सो दैट इज बेस्ड ऑन yes thorium based, so वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि in upcoming time so now we can uh, increase the number of this thorium based plant, but उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो साइकिल के लिए, so जैसे ही वो हो जाता है तो मे बी इसलिए हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे आप लिख सकते हो, so that's why we are focusing on this and efforts being made by the India to ensure peaceful use of nuclear, so always हमने कभी फर्स्ट अटैक ऐसे तो पॉलिसी हमारी कभी नहीं थी, ठीक है, एंड इवन इंडिया भी बताते कि हम डेफिनेटली नहीं करेंगे न्यूक्लियर यूज, बट if anyone use nuclear like a weapon on India, so definitely we'll counter it, okay, मतलब counter के लिए use कर सकते हैं, but usually हम peacefully use करने वाले हैं, so in the early years atomic science, okay, and the greatest interest of the promise was nuclear power अगर देखा जाए, so predictions and would abundant electricity energy and power starved of the world, so definitely ये starving situation में nuclear energy बहुत ही अच्छा stand हो सकती है, clean energy source हो सकता है, ओके, सो वो हमें वहां पे ही थोड़ा सा मेंशन रखना है, ओके, एंड बाकी फिर ह्यूमन हेल्थ डिफरेंट डिफरेंट वो तो फैक्टर्स आ ही जाएंगे इसमें, तो इंडिया में देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भी है तो थोड़े से उसकी इंफॉर्मेशन रखो, ठीक है, सो दैट इज लाइक कर्नाटक, हाँ कैगा में है शायद वो, ठीक है, तो बाकी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ऑपरेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट जो भी हो गया तो थोड़े से उसकी इंफॉर्मेशन जितना पॉसिबल है उतना रखो, तो देयर आर एग्जैक्टली कितने कितने प्लांट्स है एंड मोस्टली इन ऑपरेशन देख लेना कौन से आते हैं एंड जो फ्यूचर प्लांट है तो वो भी एक बार चेकआउट कर देना, ठीक है, तो दीज आर सम प्लांट्स, ओके, सो गो विद दैट, ओके, एंड थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस भी आप लिख सकते हो, तो ये बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अंडरस्टूड, यस, और ये रही बात ये लास्ट जो पार्ट है, सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, वैसे ऑलरेडी हमने ये मेंशन मतलब डिस्कस तो किया है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफिशिएंसीज इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ओके, सो and mention the steps needed to augment disaster financing, okay, so I think ये हमने already discuss किया, तो कौन सा क्वेश्चन बाकी है आपका, कुछ ऐसा है क्या?
ठीक है, सो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ बिकॉज इट्स नॉट येट प्रिपेयर्ड. ओके, सो कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर, कैन यू प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर फास्ट? just wait, just wait. So only one question is there that is related to the Khalistan something. Okay, so वो एक आपको forward हो जाएगा. Okay, so I will forward you that particular after. इसके कुछ group वगैरह है कुछ आपका, so that I can forward on that particular part. तो वहाँ पे मैं forward कर सकता हूँ आपको. ऐसे कोई group है आपका? Is there any group so that I can forward this PPT and along with the remaining question. So almost सब question हमारे यहाँ पे cover up हुए. Only 6 question. Question number 6 is remain. Okay. So I will forward you that. Okay. Is there any group, Telegram group और है किसी का कुछ और ऐसा कुछ है आपका? Yes, Telegram. Okay. So you can add me. Okay. So please add me. Add this. ठीक है. So just add me to that group. Okay. So या आप भी कोई अलग से कुछ create कर सकते हो so that I can share the entire PPTs related to that. Okay. So it's my number 9404982490. Okay. So please add me to that particular group so that I can share you the same PPTs. Okay. Okay. Any question after this? Yes. Any question? So ठीक है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ है सबको. वैसे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. ठीक है, तो उससे भी आपको अगर कुछ डाउट्स हो गए तो वहां से क्लियर हो जाएगा. ओके, ठीक है. अंडरस्टूड एवरीवन? सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस, एनी क्वेश्चन? फास्ट, प्लीज रिप्लाई फास्ट. ओके ओके ओके, ठीक है, फाइन. Yes, Panchashil for internal security, you can write about Panchashil. Even Article 51, you can write about it. Okay, so even constitutional things, Article 51 also talk about international peace and everything. ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो. So India will maintain the international peace. So it's according to the question. ठीक है, तो आप constitutional provisions भी आप mention कर सकते हो. Okay, या even Panchashil Pact of 1954-55. Okay. बट वही है कि थोड़ा सा आपको देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, so उसी अकॉर्डिंग लिखना है. ओके, नहीं, न्यूक्लियर आंसर, यस, यू कैन राइट अबाउट द न्यूक्लियर आंसर. बट पंचशील से क्या होगा, मतलब चाइना तो अभी ऐसे कुछ डिस्क्लोज नहीं करता है, बस पाकिस्तान कुछ डिफरेंट टेस्टिंग करते रहता है या फिर पाकिस्तान की तरफ से होता है. सो न्यू पंचशील पैक्ट इज विद चाइना. ओके, सो वो आप वहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. हाँ, यू कैन मेंशन आर्टिकल 51. Okay, you can mention Article 51, Vedanti. Okay, so just mention Article 51. Even Indian Constitution guarantees that. Okay, so India will have a good relationship or peaceful relationship with the other country. Okay, so you can mention Article 51, right? Okay, instead of Panchashil Act, so that will be better. Okay. Yes. Okay, great. Okay. Yes. Okay, then चलो, thank you all of you. So I hope सबको आज का सेशन थोड़ा बेनिफिशियल हुआ है. एंड जो भी पार्ट आपको अगर कोई नहीं समझा है, ठीक है, सो आई विल फॉरवर्ड यू ऑन द टेलीग्राम. एंड अगर उसमें भी कुछ क्वेश्चन आता है, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर. ओके, सो आई कैन डेफिनेटली गाइड यू अबाउट इट. ओके, यस यस, आई विल डेफिनेटली, बस जस्ट ऐड मी टू द ग्रुप सो दैट आई कैन शेयर यू द पीडीएफ. ओके, एंड अगर कुछ भी और भी अगर आपका डाउट होगा, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी. ओके ओके देन. ओके, थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.